Sorry guys, we had a small glitch. So my name is Ashish. I'm the chef in charge for Leela Hotel at Gurgaon, and with me I have my monster daughter, very naughty. She calls herself Young Chef Samaira. Why do you call yourself Young Chef Samaira? Because I'm young and I like baking desserts. Because she's young and she loves baking desserts. So today what are we doing? It's Mother's Day tomorrow and I want to make a mousse. Okay, a mango mousse. It is my mother's favorite ingredient and she doesn't like sour mangoes. So we got Alfonso's, the closest we could get, because Alfonso's are sadly only in Mumbai. No, we got it here. But closest Yeah, we yeah. got. So we're going to make it out of that because that's sweet. And what I'm doing is, so her mother, my wife, she's from Calcutta, Bengali, and she likes beetroot chop. But I will make something with beetroot, something similar, something different also, with my twist, which is nice, refreshing, fruity, flavorful, and perfect for a summer weather. The weather has changed. So let's try, let's go ahead and let's Okay. wow. So what are you doing right now? So first I have my mangoes and Okay. I have some cream cheese. Okay. I'm just going to get another ingredient which I kept in the fridge so that it can cool down. Okay. Whipped cream. Okay. So I have already added sugar in the whipped cream, but if you want, then what you can do is you can add more sugar if you want to make it too sweet. Okay, so first thing I'm going to do is I'm going to take on mixer. I'm going to add a little bit of mango. So how much mango is this? This is one mango and I'm going to add 3/4 of this in here. Okay. Okay. That's enough. Okay. And now what I'm going to do is I'm going to close it. Okay. And I'm going to keep it in the mixer. There. And I'm going to put it inside. There. Now I'm That's enough. Though that was for 2 seconds, that's still enough. So basically you just want to puree it. Yeah. But I thought you always said that you love chocolate and you want to make chocolate dessert. It's Mother's Day, so Mother's favorite ingredient. Okay. Now I'm gonna put a mango in this also. And I'm gonna add I'm gonna add the mango puree inside. Now I'm gonna whip it.
Yeah. It's done. Smells really good. So, Samara, how much of cream cheese you took? I took 50 grams. Okay. And now I'm gonna add the whipped cream inside. Okay. And now I'm going to use the cut and fold method to mix it. Okay. And how much of whipped cream was this? 75 grams Okay. So 50 grams of cream cheese and 75 grams of whipped cream. and one mango. Yeah. Okay. So you have added mango as a puree and dice also. Yeah. Can you do a variation in this? Can you just puree or just keep dice? So I'll tell you. If you want variation, you can do this. If you want white mousse which has mango visible, so guys, what you can do a variation in this is you can make a white mousse which was like a cream cheese. Just whip it nicely, fold whipped cream into it, and then add the diced mango. So you get the white mousse with mango spots, like an ice cream where you have this mango and vanilla mix. Same kind of a flavor. But if you want a smooth mango flavor, then this is one way. You can also do the entire puree. She has done half and half, like a half mango puree, and she has added the chopped mangoes. If you want, you can add only puree mangoes also. Job well done. So now, I have some nice. yeah. So can I help you with this? Yes. I don't want to drop it. Okay. So what we'll do is we'll add the mousse and And I got an idea to make it less boring and plain. okay. And what's the idea? And wafer sticks this. So we'll set it in the fridge. We'll keep it once it's become a little cold and it'll set, then we'll garnish it. Okay. Okay, so put it in the fridge now. Okay, and I'll clean up your area. And you need to come here and help me. I helped you, now it's your turn to help me. Bye. Yeah. So now, dessert have gone in a refrigerator. Now what I'm doing is beetroot and carrot. We'll chop it and we'll cook it together. But a twist, like I mentioned about citrus fruits, so I'm using orange zest into it, and what I'll do is I will do a balsamic reduction also. So I have balsamic with me. So I've added some balsamic in my pan. And I'll just keep it to reduce a little. We won't reduce this too much because I'll be adding honey to it, because I need khatta meetha kind of a dressing with it. मैं इसके साथ कोई चटनी नहीं दे रहा. So I will be giving orange salsa kind of a thing with this. अच्छा. So orange के साथ में हमको इसका zest निकालना है.
आप चाहें जेस्टर से वो भी निकाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लंबा लंबा लाइक जूलियन श्रेड्स काइंड, कि वो मुंह में हल्का सा आए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये एकदम क्लीन है, ये वाइट है, इसके अंदर कड़वाहट होती है, बिटरनेस होती है, तो इसको निकालना बहुत जरूरी है। एकदम क्लीन चाहिए हमारे को। सो अब ये मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। अब हम इन सब को जूलियन कर लेते हैं एकदम फाइन। जितना फाइन करेंगे उतना ही अच्छा आएगा। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। इसमें बिल्कुल भी हमारा जेस्ट नहीं है तो बिटरनेस नहीं होगी। सो अब हमारे को अच्छा, अभी आप देखेंगे हमारा बलसामिक कुक होना शुरू हो गया है और बबल होना शुरू हो गया है, रिडक्शन आनी शुरू हो गई है। इस समय मैं इसमें डाल रहा हूं थोड़ा सा हनी। सो हनी इसको थिक भी करेगा, सो रिमेंबर इट। तो जब तक ये रिड्यूस होता है हम इसको साइड फ्लेम पे रख लेते हैं और हम अपने मसालों को थोड़ा सा टॉस करेंगे। मसाले इसमें बहुत ही सिंपल मैं रख रहा हूं। शुरुआत में थोड़ा सा धनिया और सौंफ को मैं ड्राई रोस्ट कर रहा हूं। ये ड्राई रोस्ट करना बहुत जरूरी होता है, इससे जो इनके एरोमेटिक ऑयल्स हैं वो निखर के आते हैं और जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको 2 मिनट, और जब तक ये हमारा रोस्ट हो रहा है हम इनको अपने कैरेट और बीटरूट को चॉप कर लेते हैं। ये बीटरूट डाल दिया हमने, ये हमने कैरेट डाल दिया। आप इसके अंदर आपको जो मर्जी डालने हैं, अगर आपको वैरायटी के लिए ग्रीन पीस डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसको आप इसको देख सकते हैं, मैंने इसको एकदम फाइन पेस्ट नहीं किया है, इसको चॉप किया है फाइनली। अच्छा, हमारा बाल्सामिक रिडक्शन रेडी हो चुका है। इससे ज्यादा करेंगे तो जल जाएगा। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। गलती से मैंने गलत रेंज बंद कर दी थी, इससे आपको पता चल जाएगा मुझे घर में खाना बनाने की आदत ज्यादा नहीं है। कहते हैं ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अगर आप क्लासिकल बीटरूट चॉप बना रहे हैं तो उसके अंदर एक बे लीफ, इसके अंदर दालचीनी, लौंग, जीरा और इलायची भी जाएगी, छोटी इलायची। बट वो सारे फ्लेवर्स और इन सारे फ्लेवर्स में थोड़ा फाइट हो जाएगा, तो इसलिए हम वही फ्लेवर्स रख रहे हैं जो हमारे सिट्रसी फ्रूटी फ्लेवर्स के साथ अच्छे जाएंगे। जैसे ये रोस्ट होना शुरू होता है फ्लेवर्स अपने आप निकलने आ जाते हैं। बस 1 मिनट में इसकी, ये मेरी फेवरेट लैडल स्पैचुला है जो समायरा ने यूज कर लिया था, एंड मुझे इसी के साथ काम करने में मजा आता है, तो मैंने उसको फटाफट से धो लिया है और हम इसको अभी पीस लेते हैं मसाले को। अब इस मसाले को मैं थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल, हमाम दस्ता जिसको कहते हैं, मोर्टर एंड पेसर, क्योंकि मुझे दरदरा चाहिए ये। आप चाहें तो इसको रोस्ट करने के बाद जब आप इसको चॉप कर रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसको हम पीस लेते हैं।
अच्छा, ये बहुत जरूरी है, आप इसको हाथ से कवर करें क्योंकि जब आप मारेंगे तो ये उछल के बाहर आएगा। तो हम तो आप देख सकते हैं ये मैंने हल्का सा कूट लिया इसको। अब हम इस मिक्सचर को कुक करना शुरू करते हैं। मैं यूज कर रहा हूं मस्टर्ड ऑयल। मैंने आपको बताया है वाइट बंगाल से मस्टर्ड ऑयल का वहां पे यूज काफी होता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑयल, हेल्थ के लिए भी और फ्लेवर के लिए भी। तो इस ऑयल को एक हल्का पहले स्मोक करना बहुत जरूरी है, तो हम इसको स्मोक कर देते हैं। आप लोगों को भी मस्टर्ड ऑयल पसंद है? नहीं तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, पर बटर का स्मोकिंग टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। सो अब स्मोक हो चुका है, फ्लेम को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं 2 मिनट। अब हम इसमें सबसे पहले साबुत लाल मिर्च डाल रहा हूं। साबुत लाल मिर्च के बाद में मैं इसके अंदर चॉप जिंजर और चॉप ग्रीन चिली डाल दूंगा। इसमें लौंग आ गया। पहले मैं सोच रहा था कि बीटरूट चॉप बनाऊं, बट फिर थोड़ा सा तो अपना चेंज करना पड़ेगा। अब ये मेरा जब जिंजर और ये चॉप हो गया है तो इस समय मैंने डाल दिया है बीटरूट और कैरेट का मिक्सचर। ये जब तक मेरा बीटरूट और कैरेट का मिक्सचर कुक होगा हम बाकी भी उसमें मिला कर देंगे। इसमें मैंने अब डाल दिया है मैंने इसमें अपना ऑरेंज जेस्ट भी, और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक का एक बड़ा फायदा होता है शुरुआत में डालने का कि वो पानी जल्दी छुड़वा देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा वेजिटेबल्स कुक जल्दी हो जाते हैं। हमको इसको कुक करना है, इसका जो मॉइस्चर छूटेगा वो मॉइस्चर को ड्राई करना है। ये कुक हो रहा है हमारा। जब तक हम ये कुक हो रहा है इसको स्लो पे छोड़ देते हैं और इसको थोड़ा कवर कर देते हैं। इसको कवर करके छोड़ दिया है, बट अभी इस समय ऑरेंज का स्मेल आना शुरू हो गया है, अरोमा बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो इसको कवर करके हमने छोड़ दिया है। जब तक हम अब अपना सालसा बना लेते हैं। सो थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट मैंने बचा लिया था। इस ऑरेंज जेस्ट को थोड़ा सा मैं चॉप कर लिया। ऑरेंज जेस्ट को मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं अनियन है
अनियन को फाइन चॉप कर रहा हूं। बहुत जरूरी है कि आप इसके लिए फाइन चॉप करें, क्योंकि हम इसको कुक नहीं करेंगे तो आपके मुंह में इसकी बाइट आएगी। इसकी बाइट अगर आपका बड़ा होगा तो एक तरफ अनियन, एक तरफ टमाटर, एक तरफ धनिया जाएगा। हम छोटा छोटा करेंगे तो हमारा फ्लेवर्स एक जैसा आएगा। आप देख लीजिए मैंने कितना फाइन किया है। अब अगर कर सकें तो बढ़िया है, नहीं कर सके तो जितना कर सकते हैं उतना फाइन करने की कोशिश करिए। तो ये मेरा चॉप अनियन हो गया है। अब मैं थोड़ा सा चॉप टोमेटो भी कर देता हूं। ये मेरे चॉप टोमेटो हो गए हैं। अब हम इसको देख लेते हैं हमारा क्या सीन है। थोड़ी देर है इसमें अभी। ओके, अब इस समय इसमें मैं डाल रहा हूं, ये है धनिए के डंडी और जड़े। ये मेरे बहुत ही फेवरेट इंग्रेडिएंट है। लोग इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। ऊपर का धनिया निकाला, चॉप किया, बट ये मेरा इतना फेवरेट है। इसके अंदर इतना ज्यादा फ्लेवर और अरोमा होता है कि मैं इसको कभी नहीं फेंकता। तो इसको डाला, अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे। और हल्दी जो है वो इसके रेड कलर को निखारेगी, बस इसलिए ही डाल रहा हूं। और चिली हमने पहले चॉप ग्रीन चिली भी डाला है। आप अपने हिसाब से आपको जितना डालना है डालिए। और इस समय ये जो मसाला मैंने डाला था, आपको फाइन करना है फाइन करिए, दरदरा चाहिए दरदरा डालिए। ये सौंफ का इसके अंदर इतना ज्यादा मतलब प्यारा फ्लेवर आएगा, मतलब डालते ही जो अरोमा एकदम से आया है, आई कांट टेल यू, यू हैव टू मेक इट एन एक्सपीरियंस योरसेल्फ। हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए बॉइल आलू डालेंगे थोड़ा सा। आप चाहे तो रोस्टेड चना पाउडर डाल सकते हैं, कच्चा केला डाल सकते हैं अगर आप आलू नहीं खाते। ये मैंने बॉइल आलू पील कर लिया है। अब मैं इसके अंदर इसको ग्रेट करूंगा। आप चाहे तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं, ग्रेट से बस वही है आपका इवननेस आ जाती है एक। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। अभी 2 मिनट और फिर मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा।
आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को अभी ज्यादा हाई वगैरह नहीं कर पाया, नमस्ते नहीं बोल पाया, गुड इवनिंग नहीं बोल पाया, क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा। कल मदर्स डे है और समाइला हम ये किसके लिए बना रहे हैं? मम्मा। या तो पंगा ले सकते हैं? कैन वी टेक चांसेस? Are you scared of mama? Or you love her? Come see what we are How doing. is that supposed to be a question? No, it is. If you love or you are scared, they are two different things. Scared isn't the question. So you love her basically. Okay. So now our mixture is literally ready. अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने रख देंगे। चलिए, मैंने गैस बंद कर दी है। इसके अंदर हल्की सी बाइंडिंग आ चुकी है। मैं इस मिक्सचर को ठंडा करने रख रहा हूँ। चलिए एक सेकेंड। अब इस मिक्सचर को एक स्टील की प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। Can you help me and put this mixture in fridge so that? But is mine ready? No, dessert comes in the end. So put this in refrigerator. Okay. Let me wash my hand. Okay. So now I'll show you. Somewhere in bowl I kept coriander also. Let me take out. So, a little coriander, we'll just chop it. ये हमने कोरिएंडर चॉप भी इसके अंदर मिला दिया है और अब हम इसके अंदर थोड़ा ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा बाल्सामिक विनेगर जो हमने रिड्यूस किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा रिड्यूस ज्यादा हो गया है, कोई नहीं। मैं इसको Someone get me lemon from inside, please. Okay. इसके अंदर अभी हम डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस भी। Oh, seeds gone inside. So, पहले सीड्स को निकाल लेते हैं। और अब इसको हम पूरे को मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा जो साल्सा है वो रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा बाल्सामिक रिडक्शन और डाल देते हैं।
ये हमारा सालसा भी रेडी हो गया। अब हम लास्ट चीज जो टिकिया है हमारी, जो हमारा गैलेट है, उसको स्टफ करेंगे। तो स्टफ करने के लिए मैं ले रहा हूं अमूल चीज, क्योंकि जब आप इसको कुक करूंगा ना, जब मैं इसको खाऊंगा अंदर से, तो ये मेल्ट होकर निकलेगा। तो चीज को मैंने रफली चॉप कर लिया है बस। और इसमें भी थोड़ा सा चॉप अनियन क्रंच के लिए। वही है जैसे पहले बताया था, चॉप अनियन जितना फाइन कर सकते हैं उतना फाइन करिएगा। चलिए ये हो गया। अब एक मिनट हम अपना मिक्सचर देख लेते हैं। हमने वैसे फ्रिज में रखा था जल्दी ठंडा करने के लिए। Samara, take out that plate please. Okay. Still hot. Show me. So what we'll take, we'll make only few gallets from side. It's still hot, but what we'll do is we'll stuff it. तो हम इसको फ्लैट कर लिया, इसमें चीज़ और अनियन थोड़ा सा स्टफ कर लिया, और देन हमने इसको पूरे को कवर कर देंगे हम। और ये मेरी स्टफ टिक्किया रेडी है, जिसको मुझे अभी तवे पे पकाना है। अभी मैं इसको पैन फ्राई करूंगा। तो अभी एक और बना लेते हैं क्विकली से, एकदम जल्दी से। चिली अगर आ रही है तो इसको निकाल दीजिएगा। ये हमने सिर्फ शुरुआत में फ्लेवर के लिए डाली थी, तो फिर इसको हमने फ्लैट कर लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा चीज डाला, थोड़ा सा चॉप अनियन डाला। आप चाहें तो इसमें मिंट भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रहा, मेरे लिए बहुत सारे फ्लेवर्स हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने धनिया पहले से ही डाल दिया है। तो ये मेरी दूसरी टिक्किया भी रेडी हो गई है। चलिए मैं एक मिनट अब हाथ धो लूं, और फिर हम इस टिक्किया को सेकेंगे। एक मिनट हाथ धो के आए। ओके, सो अब हम अपना ये इस एरिया को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, और थोड़ा सा इस जगह कपड़ा मार लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन किचन व्हेन यू आर वर्किंग, क्लीन योर एरिया। वी से क्लीन एज यू गो। जब जरूरत पड़े तब सफाई मत करिए, जैसे ही काम खत्म हो जाए हाथों हाथ तभी सफाई करिए। सो क्लीन एज यू गो। ये अभी हमें सालसा की जरूरत पड़ेगी। ये रख लिया हमने। जो हमें नहीं चाहिए
वो सारा हमने हटा दिया है। चलिए अब हम अपना पैन को पहले गरम करते हैं। मेरा लाइटर थोड़ा सा आगे चला गया था। इसको हम अब इस समय मैं इसको घी में गरम करूंगा, सॉरी घी में सेकूंगा। सबसे पहले मैंने इसके अंदर घी डाल दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा बाल्सामिक थोड़ा ज्यादा रिड्यूस हो गया था, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और उसको मिक्स कर दिया है। इस समय हम इसके अंदर डाल देते हैं अपनी एक टिकिया और अपनी दूसरी टिकिया, और इसको एक साइड से पकने का इंतजार करेंगे। ओके, जब तक अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको सबको आंसर कर देता हूं। So let me start from start. Hi guys, hi everybody. Looks so appetizing. Thank you. I don't know, I'm reading after long, so appetizing was Samira's desserts or my tikya. I think it was my tikya which is more appetizing, right Samira? Mine's tasty. Yours is tasty. Okay. Awesome, nice skill. Thank you. Loving the cooking till now. Thank you. Looks amazing. Thank you. Drooling already. Must be my desserts. Oh, sorry, my food, not yours, Samira. And I trust me, Mama would like my food more than yours. Sure. Yeah. It's a perfect evening snacks. You can have it for evening, you can have it for morning. In fact, you can have the same thing stuffed as a burger patty for vegetarian. What's the binding agent used for making tikki? Rupa, I have used potatoes, only potatoes into it. You can add besan, chickpea flour, breadcrumb, anything you want. Okay, so let me now quickly, easily turn it. So now it's time for us to plate it. So what I'll do is the same balsamic reduction what we have done, we use it the same. I'll put it on my plate. My tikkiyas are ready.
put it here. I have done some orange wedges which I'll use here. Randomly I'll just place them. I have coriander sprig with me. I'll just place coriander sprig in center, and yes, of course, the salsa which we have made, I'll make it flow down. So, and if you want spicy feel, then can add a chili flakes, oh sorry, green chili to it. So my tikya is ready. You can have a look. I trust you like it. What? Nothing. Tell me. And mine's gonna be tastier. Yours going, okay. We'll make more from mama. Should we taste? Or we'll taste Samira together? Okay. Okay. Get yours now. I'll help you with plating of yours. Okay. Is that a non-stick cookware is bad for our health? There are a lot of theories. Buy a good one, I would suggest. It's easier, comfortable. Thank you. This tikki looks delicious. Thank you. For how long we should cook the tikkis? It's basically दोनों तरफ से crispy हो जाए and आपका cheese अंदर से melt हो जाए. Samara, get cream also from inside. Okay. The cream which you whipped, you have kept it in the fridge, right? Yeah. Okay. Okay, so we are ready now. Samira's mango mousse is here. If you would have noticed, this mango mousse is without any gelatin. So this is whipped cream जो हमने बचा ली थी. Rest is sorry. What? Rest is used. Yeah. Then we'll use it. We'll use a. Right now I don't have the best of mint sprig with me, but you can use a good mint sprig. It will look beautiful. And I think time to taste now, Samira. Yes. Okay. To prove. What? To prove the truth. Okay. So I give you a spoon. First try mine, and then yours, and give me a true feedback. Okay. Guys, you also need to tell us which one is better, mine or Samira's. It's a competition and you need to be fair. Okay, I'll cut it I for you. already know the answer, but sure. See. Now if you can see, the cheese is melted inside. Cheese is... Looks like a double cheese pizza. Yeah, it looks like a double cheese pizza. It's hot. It's hot? Yes. It's hot? Okay. But it's tasty? Yes. So mine is tasty, right? But Yours is... I never said mine is less. Okay, so now time to taste yours. This is gonna be way better. Hey! Cheater. The best thing ever. Mine was better. No. Okay, so guys, we are done with the cooking. And she's not done with the eating. I have
Seriously, I have doubts that she is going to leave anything for tomorrow. I have to make fresh ones. But you guys tell me, how do you like? And if you have any query, feel free to get in touch with us. If you want, you can get in touch with us directly also. My handle is Chef Bhasin and her handle is Young Chef Samaira. Feel free to message any one of us and we'll try to answer all your queries. Thank you. Take care. And Bye. happy Mother's Day to all of you. Yes.